Hello and welcome to LDL 17 लेक्चर 16 का जो पार्ट 2 हमने डिसाइड किया था एज एन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसको लेक्चर नंबर 17 कर लेते हैं। वी हैव डिसाइडेड कि हर एक टॉपिक को एक अलग लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे। सो नाउ इट्स योर लेक्चर 17 फॉर classification of elements, periodic trends and properties of the elements. We are discussing today ionization enthalpy. Ionization enthalpy. Ionization means to produce ions. Metal has tendency to lose electron from its outermost orbit and convert itself into the cash ion. General trend indicates that the electron present in the outermost orbit of the metal atom is loosely bounded, and by providing certain amount of energy, this electron can be removed from the outermost orbit of that isolated gaseous atom. Means sodium, for example, electronic configuration 281, so it possesses one electron in its outermost orbit. By providing certain amount of energy called enthalpy, this enthalpy is denoted by H. Change in enthalpy is denoted by delta H. H means enthalpy. Enthalpy is one type of energy. Enthalpy का मतलब energy होता है. Energy means enthalpy. Thermodynamical concept है ये. चैप्टर नंबर 6 में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में एंथैल्पी का मतलब क्या है, थर्मोडायनेमिकल फंक्शन है, लेकिन एट प्रेजेंट आप एंथैल्पी मतलब एनर्जी कंसीडर कर सकते हैं। सो सोडियम एटम को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एंथैल्पी या एनर्जी प्रोवाइड करने पर वो इलेक्ट्रॉन एजिटेट होके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से रिमूव हो जाएगा एंड इट प्रोड्यूसेस Na+ आयन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड I is for ionization. So it is called ionization enthalpy. Ionization enthalpy. So what is the definition of ionization enthalpy? शॉर्ट फॉर्म में हम उसको IE से डिनोट करेंगे, ionization enthalpy. Define ionization enthalpy. The amount of energy required to remove an electron from outermost orbit of an isolated gaseous atom. This word is most important. Isolated gaseous atom is known as ionization enthalpy. Ionization enthalpy denoted by delta HI. I is for ionization. Again, the amount of energy required to remove the electron from outermost orbit of an isolated gaseous atom. This word is most important. Is known as ionization enthalpy. मतलब वो जो एटम है वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए और वो आइसोलेटेड होना चाहिए, क्रिस्टलाइज में बाइंड अप नहीं होना चाहिए। आइसोलेटेड मतलब सेपरेट, अलग। तो वो गैसियस एटम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, that amount of energy is called ionization enthalpy denoted by IE. ये था definition of ionization enthalpy. Suppose in case of magnesium जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 है, so by providing certain amount of energy delta HI, हम इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट से दो में से पहला एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, दो एक साथ नहीं, एक। So it acquires +1 charge and the electronic configuration becomes 281. एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है by removal of one electron. एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद ये चार्ज +1 हुआ, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ रही है कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन enthalpy. First ionization enthalpy. Then
by providing more amount of energy, delta Hi. This is called delta Hi1 and here it is called delta Hi2. 1 is for first ionization enthalpy. 2, that means it is for the removal of the second electron, and that's why afterwards we will acquire Mg2 plus charge. This amount of energy that is required to remove the second electron, which is loosely bounded. ये इलेक्ट्रॉन तो बहुत टाइटली बाउंडेड होंगे जो कि इनर ऑर्बिट में है. इनर मैग्नीशियम का न्यूक्लियस, उसका फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, 2 8 2, ये इनर इलेक्ट्रॉन्स बहुत स्ट्रांगली बाइंडेड होते हैं, लेकिन आउटर इलेक्ट्रॉन पर इतना ज्यादा स्ट्रांग अट्रैक्शन होता नहीं है, और इसलिए ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकता है बाय प्रोवाइडिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसमें स्टेज वाइज एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा. ये दो इलेक्ट्रॉन एक साथ रिमूव नहीं होंगे. विल प्रोवाइड सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी टू लूज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन. सो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी. दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है दैट इज कॉल्ड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. Estimation indicates that, practical results indicates that compared to the first ionization enthalpy, second ionization enthalpy is always higher. पहले की कंपैरिजन में जो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो हमेशा हाई होती है, ज्यादा होती है. Why? ऐसा क्यों कि कंपेयर टू द फर्स्ट सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर. दोनों ही केस में हमने एक एक इलेक्ट्रॉन ही रिमूव किया है. पहले स्टेज में भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, दूसरे स्टेज में भी एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव किया. तो ऐसा क्यों कि पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसकी कंपैरिजन में सेकंड टाइम वी नीड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी. दैट मींस कंपेयर टू द फर्स्ट सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर. कंपेयर टू सेकंड इफ थर्ड इज प्रेजेंट, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर. एल्यूमिनियम के केस में एल्यूमिनियम Al3+ आयन बनता है. सो स्टेज वाइज हम 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे. सो कंपेयर टू फर्स्ट सेकंड इज हायर, कंपेयर टू सेकंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर. व्हाई इट हैपेंस? सो ऐसा क्यों होता है? लेट्स सी. कंपैरिजन बिटवीन द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. बट पहले ये डेफिनेशन आप कॉपी कर लो. व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम outermost orbit of an isolated gaseous atom is known as ionization enthalpy. Ionization enthalpy में the amount of energy required to remove the first electron is called first ionization enthalpy. The amount of energy required to remove the second electron is called second ionization enthalpy, and the amount of energy required to remove the third electron is called third ionization enthalpy. हम अब यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर द एलिमेंट. कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की कंपैरिजन क्या होगी. जल्दी से ये कॉपी कर ले, फिर वो डिस्कशन कर रहे हैं. स्क्रीन पर शायद आपको एक आध ग्राफ यहां पर दिख रहा है. आप उसके लिए कोई चिंता ना करें, उस पर ऑब्जर्वेशन अभी नहीं है, वो हमारा लेटेस्ट टॉपिक है, लेकिन वो ग्राफ पहले से ड्रॉ करके रखा है फॉर कन्वीनियंस. लेक्चर के बीच में इतना ग्राफ क्लैरिटी से ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए वो पहले से बना के रखा है. आप उस पर फोकस ना करें, अभी आपका काम खाली यहां पर है कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. जल्दी से कंप्लीट करें और आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो सेकंड पार्ट है उसमें डिस्कस करेंगे कंपैरिजन बिटवीन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. क्विक कॉपी करो जल्दी से, फिर मैं रब कर रहा हूं. I think सबने ये कॉपी कर ही लिया है. So now we are discussing the comparison for the first, second and third ionization enthalpy.
I is for ionization, first, second and third. So ये trend indicate करता है compared to first, second ionization enthalpy is higher, compared to second, third ionization enthalpy is higher. To understand this concept हम एक फन वे में डिस्कशन ले रहे हैं. भूल जाओ एल्यूमिनियम को, भूल जाओ नथिंग, कुछ नहीं. सपोज करो कि एक फैमिली है, ये फैमिली में 3 बच्चे हैं, 3 छोटे छोटे किड्स. ये 3 छोटे बच्चे अपने बाहर, घर के बाहर ग्राउंड में खेल रहे हैं, कंपाउंड में. अब कंपाउंड में ये 3 छोटे बच्चे खेल रहे हैं. एक किडनैपर आता है, किडनैपर, और किडनैपर आके वो बच्चों को में से किसी एक बच्चे को किडनैप करके ले जाने की कोशिश करता है. एक बड़ा सा बोरा लेके आता है, थैला, बच्चे को पकड़ने के लिए. और वो बच्चे जो खेल रहे हैं उनको बुलाता है, आओ आओ बच्चों, यहाँ पर आओ, ले लो चॉकलेट, ले लो बच्चों, चॉकलेट ले लो. चॉकलेट दिखा के बच्चों को नजदीक बुलाया. जैसा ही एक बच्चा नजदीक आया, चॉकलेट थमा के उसको उठा के बोरे में डाल दिया, उसको किडनैप करके ले गया. तो अब वो फैमिली जिसमें ये 3 बच्चे बाहर खेल रहे थे ग्राउंड में, बरामदे में, उसमें से एक बच्चा जो है वो गायब हो गया. पहला बच्चा जो गायब हो गया, फिर फैमिली थोड़ी चौकन्नी हो गई कि अरे बाप रे, हमारी फैमिली से एक बच्चे को किडनैप करके ले गए. अब कितने बच्चे बच गए? 2. अब ये 2 बच्चे जब बाहर अकेले में खेल रहे होंगे, उससे पहले घर के बड़े बूढ़े जो है वो उन पर ज्यादा ध्यान रखेंगे कि भाई कोई उसको उठा के ले ना जाए, और उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दी कि देखो बेटा, कोई गंदे अंकल आवे, अगर आपको चॉकलेट की लालच दे तो जाना नहीं तो वो उठा के ले जाएंगे, जैसे आपके भाई को उठा के ले गए. बच्चों ने बोला ठीक है, छोटे बच्चे हैं, मान गए. थोड़े दिन ऐसे ही पास हो गए. अब वो 2 बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं, फिर से वो किडनैपर आया और बच्चों को लालच देने लगा, ले लो बेटा चॉकलेट ले लो. लेकिन वो दोनों बच्चे होशियार थे, याद आ गया कि नहीं अंकल, चॉकलेट हमको नहीं चाहिए. क्यों चॉकलेट नहीं चाहिए? तो चॉकलेट की लालच में हमारा एक भाई ऑलरेडी किडनैप हो चुका है. किडनैपर सोचता है अरे बाप रे, अब ये बच्चे हाथ में आने वाले नहीं है. पर किडनैपर भी होशियार था, उसने लालच बढ़ा दी. ले लो बेटा आइसक्रीम ले लो, घर में से आपको चॉकलेट के लिए मना किया है, आइसक्रीम के लिए थोड़ा मना किया है. बच्चे ने हाँ, आइसक्रीम के लिए तो मना नहीं किया है. जैसे ही बच्चा आइसक्रीम की लालच में नजदीक आया, दूसरे बच्चे को भी उठा के ले गए. 2 बच्चे किडनैप हो गए. अब इकलौता जो बच्चा बच गया, घर पे ज्यादा सारे लोग अब उस पर नजर रखने लगे, क्योंकि ऑलरेडी 2 बच्चे गायब हो चुके थे. अब 2 बच्चे गायब होने के बाद वो इकलौता जो बच्चा था उसको बुलाया गया, उसको बिठाया और समझाया गया, देख भाई, कोई चॉकलेट दे, आइसक्रीम दे, मिठाई दे, कुछ भी दे, तू जाना नहीं. ये सब मीठी मीठी चीजें देके तेरे 2 भाई को किडनैप कर लिया है, तू संभल के रहना. छोटा बच्चा बोले ठीक है. अब वो छोटा बच्चा बाहर खेल रहा था फिर से ग्राउंड में. थोड़े दिनों के बाद फिर से वो किडनैपर आया, ले बेटा चॉकलेट ले ले. बच्चा बोले नहीं अंकल, चॉकलेट की लालच में मेरा भाई गायब हो गया है. ले ले बेटा आइसक्रीम ले ले. नहीं अंकल, चॉकलेट आइसक्रीम कोई मिठाई नहीं चाहिए. किडनैपर भी सोचने लगा कि ये अब सस्ते में निपटने वाला नहीं है. तो अब ये बच्चे को कैसे गायब किया जाए? किडनैपर भी होशियार था, डोमिनोज से पिज्जा ले आया. ले बेटा पिज्जा ले ले, घर में से चॉकलेट आइसक्रीम बना किया है, पिज्जा के तो मना नहीं किया है. बच्चा बोले हाँ, पिज्जा के लिए तो किसी ने मना नहीं किया है. सो बच्चा पिज्जा के लालच में गायब हो गया. उसको भी उठाया, लेके निकल गए. ये जो स्टोरी है छोटी सी फिल्म में, यही हमारा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का टॉपिक है, जिसमें जो पहला बच्चा गायब हुआ वो खाली चॉकलेट में निपट गया, पर दूसरे बच्चे को गायब करने के लिए चॉकलेट से ज्यादा एफर्ट डालने पड़े इन फॉर्म ऑफ आइसक्रीम और स्वीट्स. जबकि तीसरा बच्चा जो गायब करना था उसके लिए सबसे ज्यादा खर्चा हुआ इन फॉर्म ऑफ डोमिनोज वगैरह, जो इंडिकेट करता है कि पहला इलेक्ट्रॉन तो इजीली रिमूव हो जाता है, लेकिन जब दूसरे इलेक्ट्रॉन की बारी आती है तो चौकसी और बढ़ जाती है, थोड़ा अवेयरनेस बढ़ती है, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन उतना इजीली रिमूव होता नहीं है. वैसे ही तीसरे इलेक्ट्रॉन में और डिफिकल्टी आती है. अब यही स्टोरी को हम कन्वर्ट करते हैं हमारे टॉपिक के अंदर, कॉल्ड कंपैरिजन बिटवीन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसके लिए मैं एल्यूमिनियम Al, जिसका एटॉमिक नंबर 13 है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 283,
और ये जो 3 है ये हमारे फैमिली के 3 बच्चे जो ग्राउंड में खेल रहे हैं बाहर। 3 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस कंटेन्स 13 प्रोटॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट ऑर्बिट, 8 in second, and 3 electrons 1, 2 and 3 are there in a third orbit। जो 3 इलेक्ट्रॉन है थर्ड ऑर्बिट में। अब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ रही है, डेल्टा H1I कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। ये पहला इलेक्ट्रॉन यहां से हम गायब कर रहे हैं। इट चेंजेस टू Al प्लस आयन। कंफिगरेशन चेंजेस टू 282 इंस्टेड ऑफ 3 में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। ये जो एनर्जी सप्लाई हुई कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब यहां पर हम चार्ज की बात करें तो 13 प्रोटॉन्स की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है, ये 13 प्रोटॉन का अट्रैक्शन एट प्रेजेंट 3 इलेक्ट्रॉन के बीच में डिवाइडेड था। 1, 2 and 3 अट्रैक्शन तीनों पर फोकस किया जा रहा था। लेकिन अब ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से गायब हो चुका है। तो अब Al प्लस की कंफिगरेशन में न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन एज इट इज है, लेकिन अब आउटर ऑर्बिट में खाली 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, मतलब बचे हुए 2 बच्चे। मतलब अब ये 13 प्रोटॉन जो पहले 3 इलेक्ट्रॉन पर संभाल रहे थे, अब वो कितने इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे हैं? 2। उनको अट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, और उनको अब अट्रैक्शन प्रोवाइड करना मतलब ज्यादा सिक्योरिटी। अब अगर मुझे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो इतना इजीली रिमूव नहीं होगा जितना ये हो गया था। ये इलेक्ट्रॉन पर अभी 13 प्रोटॉन का अट्रैक्शन है, जो पहले 3 में डिवाइड था अब ये 2 में डिवीजन है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हुआ। बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ये इलेक्ट्रॉन टाइटली बाइंडेड है विद प्रोटॉन। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट्स ईच अदर। और इसका मतलब ये है कि अब मुझे अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो पहले की कंपैरिजन में जो थोड़ी बहुत ज्यादा एनर्जी मुझे प्रोवाइड करनी पड़ेगी टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू Al2 प्लस आयन। मतलब डेल्टा H2I शुड बी हायर देन डेल्टा H1I। डेल्टा मींस चेंज इन एंथैल्पी। इसका मतलब यह है कि सेकेंड टाइम जो प्रोवाइड करने वाली एनर्जी है दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, वो कंपैरेटिवली हायर होगी टू रिमूव फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। और वैसे ही अगर मुझे तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, वी नीड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो सबसे हाईएस्ट एनर्जी डेल्टा H3I में होगी। ये है कंपैरिजन बिटवीन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। So compared to first, second ionization enthalpy is always higher. Compared to second, third ionization enthalpy is always higher. ये है ionization enthalpy first, second and third comparison. Next topic we'll discuss periodic trend observed in case of ionization enthalpy. Ionization enthalpy पीरियोडिकली देखा जाए, पीरियड एंड ग्रुप वाइज, तो हम सब जानते ही हैं कि पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट जो है, एक्सट्रीम लेफ्ट वहां पर मेटल्स है। और अब जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट आते जाओगे आप मेटल से नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स की ओर बढ़ते जाओगे। मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जबकि नॉन मेटेलिक एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते नहीं है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली रिमूव हो जाएंगे ऐसे एलिमेंट्स में से जो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड पर है, जबकि राइट हैंड साइड पर आते आते इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। विल टेक कंपैरिजन। यहां पर हम एक कंपैरिजन ले रहे हैं पीरियोडिक ट्रेंड की। लेट्स सी, अगर मैं सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स, सेकेंड पीरियड जिसमें सबसे पहले है लिथियम, फिर है बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, जब ये एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं तो लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9।
इन सबके स्ट्रक्चर बना रहा हूं। न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट, बेरिलियम का न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 2 1 2 2, बोरॉन न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट 2 3, यहां पर 3 प्रोटॉन, यहां पर 4 प्रोटॉन, यहां पर 5 प्रोटॉन एंड सो ऑन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। हमने ये देखा भी था कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ऑर्बिट होती जाती है श्रिंक। एटॉमिक रेडियाई का डिस्कशन देखा था, व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेम पीरियड एटॉमिक रेडियाई श्रिंक्स, डिक्रीजेस। जब ये डिक्रीज होता है तो न्यूक्लियस से लेके आउटर इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी डिक्रीज होता जाएगा। डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है इट ओवरकम्स द ऑर्बिटल अरेंजमेंट और इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन्स। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से ये अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, ऑर्बिट श्रिंक होती जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन टाइटली बाइंड अप होते जाएंगे, टाइटली बाइंड अप। जब ये इलेक्ट्रॉन टाइटली बाइंड अप होते हैं तो उनमें से वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ये इलेक्ट्रॉन को जोरों से पकड़ के रखेंगे प्रोटॉन्स, क्यों? क्योंकि ऑर्बिट धीरे धीरे श्रिंक हो रही है, डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा इसका मतलब यह है कि ये इलेक्ट्रॉन इतने इजीली रिमूव हो पाते नहीं है। सो द जनरल ट्रेंड इंडिकेट्स while moving from left to right, in the same period, ionization enthalpy increases means we need more amount of energy to remove the electron को रिमूव करने के लिए कंपैरेटिवली ज्यादा एनर्जी चाहिए while moving from left to right in the same period। ये पीरियोडिक ट्रेंड है फॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अकॉर्डिंग टू जनरल ट्रेंड, while moving from left to right in the same period, atomic size decreases. With decrease in atomic size, attraction between the nucleus and the outermost electron increases. With increase in attraction, we need more amount of energy to break the bonding. जो अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। दैट मींस अगर मुझे लिथियम की कंपैरिजन में बेरिलियम को इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, बेरिलियम की कंपैरिजन में से बोरॉन में इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, वी नीड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो वी कैन से दैट व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेम पीरियड, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू जनरल ट्रेंड। सिमिलरली अगर मैं ग्रुप वाइज कंपैरिजन कर रहा हूं, ग्रुप वाइज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड सो ऑन। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, सोडियम 11, पोटेशियम 19 सपोज। लिथियम न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट, सोडियम न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, it's 2 1। For potassium it is nucleus first orbit, second orbit, third orbit, fourth orbit, 2 8 8 1। What we will observe? Simple. Moving down the group, size increases. With increasing size, distance also increases. With increasing distance, attraction decreases. So अगर attraction decrease हो रहा है, means you need less amount of energy to remove electron। इसका मतलब ये है कि अगर आपको लिथियम में से ये इलेक्ट्रॉन, सोडियम में से ये इलेक्ट्रॉन और पोटेशियम में से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा इजीली मूव हो जाएगा? पोटेशियम का, क्योंकि ये डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, ये डिस्टेंस कम, ये सबसे कम डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस कम उतना अट्रैक्शन ज्यादा, जितना अट्रैक्शन ज्यादा उतना ही ज्यादा एनर्जी चाहिए। सो ये इंडिकेशन है दैट मूविंग डाउन द ग्रुप, ionization enthalpy decreases. Down the group, ionization enthalpy decreases. We need less amount of energy to remove the electron from the outermost orbit. Outermost orbit से ये इलेक्ट्रॉन easily remove हो जाएगा moving down the group with increase in atomic size. ये जो कॉन्सेप्ट है, it is based on effective nuclear charge
एंड स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, इसको स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अलॉन्ग विद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। द न्यूक्लियर चार्ज मतलब प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस प्रोड्यूसेस न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब डिस्टेंस जो स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है वो, और न्यूक्लियर चार्ज उस पर ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं डिटेल वर्जन में। लेकिन एट प्रेजेंट आपको ये ट्रेंड याद रखना है फॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दैट while moving from left to right in the same period, atomic radii decreases, ionization enthalpy increases. While moving down the group wise, atomic radii increases, but ionization enthalpy decreases. Means atomic size and ionization enthalpy inversely proportional to each other. They are inversely proportional to each other. यहां पर एक पहला ग्राफ जो हमारे पास है, ये ग्राफ 1, इसमें एटॉमिक नंबर वर्सेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एटॉमिक नंबर। ये ग्राफ सिंपली क्या इंडिकेट करता है, ये टेक्स्ट बुक में भी आपके पास ग्राफ है, नोट्स में भी शेयर किया गया है। ये ग्राफ क्या इंडिकेट करता है, देख सकते हो ये जो नीचे एलिमेंट है जिसमें सबसे लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। मतलब अगर आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ग्राफ बना रहे हो तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम जैसे एलिमेंट, जिसको हम कहते हैं अल्कली मेटल, जो ग्रुप 1 एलिमेंट है, वो सबसे लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी पोजेस करते हैं अमॉन्ग द एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड। और जो सबसे पीक पर है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये नोबल गैसेस है। इन केस अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बात करें एक पीरियड वाइज जो पीरियड शुरू होता है लिथियम से लेके नियॉन तक, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन से लेके नियॉन तक, तो सबसे लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी पीरियड के पहले एलिमेंट की होती है और सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी पीरियड के लास्ट एलिमेंट की होती है। एक ही पीरियड में लोएस्ट और हाईएस्ट एंथैल्पी ये इंडिकेट करती है while moving from left to right in the same period ionization enthalpy increases, and that's your graph 1 indicates that। ये zigzag लाइन जो है वो इन बिटवीन कुछ एलिमेंट्स है जो लिथियम और सोडियम के नियॉन के बीच में है। ये धीरे धीरे ट्रेंड इंडिकेट करते हैं इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। बीच में कहीं हिकअप्स है, छोटे छोटे हिकअप्स है, ये हिकअप्स क्या है उसका डिटेल वर्जन सेकंड ग्राफ में डिस्कस किया हुआ है, वो मैं अभी आपको यही लेक्चर के सेकंड पार्ट में डिस्कस कर रहा हूं एलडीआई 17 पार्ट 2 के लिए। लेकिन पार्ट 1 का डिस्कशन क्या रहा, पहला व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी को मेजर किया जाता है इन द यूनिट कॉल्ड किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल, जूल यूनिट है एनर्जी मेजर करने का, किलो जूल इज अ बिगर यूनिट, सो द एंथैल्पी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ किलो जूल पर मोल ऑफ अ सब्सटेंस। ये किलो जूल पर मोल एंथैल्पी को मेजर करने के लिए यूनिट है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो दो ट्रेंड याद रखो इन अ पीरियड व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस एंड मूविंग डाउन द ग्रुप ionization enthalpy decreases among the elements of the same period. Alkali metals, that means first element possesses lowest ionization enthalpy and the noble gases possesses highest ionization enthalpy between the elements of the same period or among the elements of the same period. Ionization enthalpy का पार्ट 2 स्क्रीनिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैं डिस्कस कर रहा हूं इन एलडीएल 17 पार्ट 2 में। स्टे ट्यून।